Hello dear students, welcome back to the digital platform of Nalanda Vidyalay. Myself Patel Pritesh and I welcome all of you for the English Literature Standard 5th poem number 4 with the title My Shadow. I hope you all are fit, fine and healthy and remain healthy also. So dear students, up to now we have completed the English grammar syllabus for the whole year, chapter number 1 to 28, okay, from both the semester, we can say, or term 1 and term 2. In English literature, in the second term we have chapter number 6, chapter number 8, chapter number 9 and poem number 3 and poem number 4. So till now we have completed up to that poem number 3 and chapter number 9 in literature also. It's time to start poem number 4 with the title My Shadow. But before I start the chapter, let me tell you one thing, that yes, now chapter number 9 and poem number 4, okay, the last two chapters that we are going to take in our English literature syllabus as term 2 syllabus also, okay. So chapter number 7, okay, and then poem number 5, chapter number 9, okay, is included, but 10 and 11 both are excluded. एक्सक्लूडेड का मतलब कि हमने कट किया है, स्किप नहीं किया है, ओके। मैंने आपको पहले कहा था कि स्किप करेंगे, अगर टाइम मिलेगा तो हम लिटरेचर का थोड़ा पार्ट आगे बढ़ाएंगे। सो चैप्टर नंबर 9 एंड पोएम नंबर 4, ओके, ये दो चैप्टर जो है वो अब हमें कंप्लीट करने हैं। एंड टुडे नाउ दिस सेशन इज फॉर पोएम नंबर 4 ओनली। चैप्टर नंबर 9 है वो कंप्लीट कर लिया है, ओके, प्रीवियस सेशन में। सो आपको याद रखना है कि पूरे हमारे लिटरेचर के सिलेबस में चैप्टर नंबर 7, chapter number 10, 11 and poem number 5, okay, this many chapters are excluded, उन्हें कट किया है हमने, okay, वो हम नहीं पढ़ाएंगे इस साल, okay, please remember this one. And this is the last video or we can say the last chapter, okay, of this terminal, पूरे टर्म का, और वो कहेंगे कि पूरे एनुअल जो सिलेबस है उसका लास्ट चैप्टर है, okay, poem number 4, because we have completed English grammar chapter number 1 to 28 and we have completed, okay, literature part also. Now this is the last chapter, or we can say the poem number 4. The title is My Shadow. So before we go into that poem, okay, by R.L. Stevenson, let's have see some new words with their meanings, okay. So number 1 is that is a heel. Heel means the back part of your foot, okay, जिसे हम हिल कहते हैं, एडी कहते हैं जिसे, उसे कहते हैं बैक पार्ट ऑफ योर फुट, दैट इज कॉल्ड हिल। नोशन मीन्स दैट इज अ पोएटिक वर्ड, ओके, बहुत सारे पोएटिक वर्ड ऐसे होते हैं जो पोएम में ज़्यादा यूज होते हैं। नोशन मीन्स आइडिया, नोशन मीन्स आइडिया। देन ऑट, ओके, ऑट टू भी हमने जो आगे पढ़ा भी था हमारे, हम कह सकते हैं कि शुड टू और टू, ओके, तो ऐसे हम दूसरा आता है ऑट। ऑट मीन्स यूज टू से व्हाट इज द करेक्ट और बेस्ट थिंग टू डू, ओके, जो हम सजेशन के लिए भी कहते हैं, या फिर ऑब्लिगेशन जिसे कहते हैं ऑट टू, ऑब्लिगेशन के लिए भी, ओके, सजेशन के लिए भी, तो उसमें आता है ऑट। मीन्स यूज टू से व्हाट इज द करेक्ट और बेस्ट थिंग टू डू। देन फोर्थ वन इज कावर्ड। कावर्ड मीन्स समवन हु इज नॉट ब्रेव, हम डरपोक जिसे कहते हैं, ओके, डरपोक जिसे कहते हैं ना उसे कावर्ड कहते हैं, ओके, इन इंग्लिश, समवन हु इज नॉट ब्रेव। देन फिफ्थ वन नर्स। नर्स मीन्स द पोएट्स नर्स और केयर टेकर, पोएट की जो नर्स है या उसका केयर टेकर है उन्हें नर्स कहते हैं। सो जो पोएम होती है, वो पोएम के अंदर हम कुछ जो स्पेलिंग्स होती है वो एरर्स नहीं होती, लेकिन उन्हें ऐसे लिखा जा सकता है, ओके। तो पोएट जो है उन्हें थोड़ी हम कह सकते हैं कि फ्रीडम है अपने हिसाब से कुछ वर्ड्स लिखने की, ओके, कुछ फ्री वर्ड्स लिखने की, मतलब कि वो स्पेलिंग में थोड़े चेंज कर सकते हैं, माइनर चेंज कर सकते हैं, एंड दे कैन राइट देम, ओके, इनटू द पोएटिक लैंग्वेज। प्लीज रिमेंबर, इन पोएटिक लैंग्वेज। Number 6, next one is buttercup. Buttercup is a wild plant with shiny yellow flowers. Shiny yellow flowers का एक wild plant है, okay, that is called buttercup. Next one is errant. Errant means the worst kind of something. ब्रैकेट में इसलिए क्योंकि worst kind मतलब सबसे खराब, okay, अपने हिसाब से, okay, the worst kind of something, किसी का सबसे खराब, worst का मतलब सबसे खराब, okay, that is called errant. The worst kind of something मतलब उसके हिसाब से, मतलब उसके कहेंगे हिसाब से सबसे खराब। So students, these are the new words, okay, these are the 7 new words only,
ओके पोएम भी हमारी इतनी भी हार्ड नहीं है, वेरी इजी। दैट माई शैडो, द माई शैडो नाउ पोएम इज रिटन बाय R.L. Stevenson. R.L. Stevenson was very popular, okay, at his time only, and he has written many novels also and poems for children and poem for elder persons also. So let's have some information about our poet. Now, who was R.L. Stevenson? Yes, you can see the image of that poet R.L. Stevenson over here. Now its detailed description. R.L. Stevenson was a Scottish writer who wrote poems and stories for both adults and children. Okay, उन्होंने दोनों के लिए poems लिखी थी. Stevenson's poems are usually about the things that he saw around him every day. उन्होंने जो फील किया, उन्होंने जो महसूस किया, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, उन्होंने जो अपने आजू बाजू एटमॉस्फेयर में जो देखा, उनके ऊपर ही उन्होंने सारी पोएम्स लिखी है. ऑलमोस्ट सारी पोएम की थीम उनके आजू बाजू का जो एक्सपीरियंस था उसके ऊपर उन्होंने लिखी थी. ट्रेजर आइलैंड एंड किडनैप्ड आर टू पॉपुलर एडवेंचर नॉवेल्स ही रॉट फॉर चिल्ड्रन. ओके, उन्होंने चिल्ड्रन के लिए दो पॉपुलर नॉवल लिखे थे, लिखने के बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, वो है ट्रेजर आइलैंड एंड किडनैप्ड. नाउ इन दिस पोएम, अब इस पोएम की बात करें तो स्टीवनसन इज टॉकिंग अबाउट हिज शैडो एंड ऑल द थिंग्स इट डज. स्टीवनसन अपने शैडो के बारे में बात कर रहे हैं. जब वो चाइल्डहुड के एज के थे तब उनके जो शैडो का उसका एक्सपीरियंस जो हुआ था, उनके शैडो का माई शैडो जो इसलिए टाइटल है पोएम का, तो शैडो क्या क्या चीज़ करती है उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है. द शैडो फॉलोज द पोएट एवरीवेयर ही गोज एंड डज ऑल द थिंग्स ही डज. जो शैडो है वो पोएट की हर जगह उसके साथ होता है. कहीं भी जाए वो शैडो अपने उनके साथ जाता है. फिर वो सब जो पोएट करते हैं वो भी शैडो करता है. समटाइम्स इट ग्रोज बिग एंड समटाइम्स इट कैन नॉट बी सीन एट ऑल. कभी कभी वो बहुत बड़ा होता है और कभी कभी वो दिखता भी नहीं. द शैडो इज ऑलमोस्ट लाइक द पोएट्स ट्विन. द शैडो इज ऑलवेज लाइक द पोएट्स ट्विन. यहाँ पे स्टीवनसन ऐसा कह रहे हैं कि जो शैडो है वो उनका ट्विन ब्रदर है. ट्विन ब्रदर मतलब कि सगा पाए हो, ऐसा वो लगता है. सगा मतलब ट्विन ब्रदर. ट्विन का मतलब कि जब कोई भी जो हम कह सकते हैं कि बॉय हो या गर्ल हो, एक साथ जब बर्थ लेते हैं ना उन्हें ट्विन्स कहते हैं. ओके, एक साथ जब बर्थ लेते हैं तब. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अवर द पोएम माई शैडो बाय R.L. स्टीवनसन. तो उस पोएम में वो कहना चाहते हैं कि जो शैडो है वो कैसा है, ओके, वो क्या क्या करता है, वो पोएट के साथ कितने टाइम तक हम कह सकते हैं कि जहाँ पे भी पोएट जाता है, ओके, वहाँ पे भी शैडो जाता है. वो सारे काम जो पोएट करते हैं वो शैडो करता है. ओके, सो लेट्स हैव दैट इंटरेस्टिंग पोएम. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम फर्स्ट. Yes, for the first stanza, I have a little shadow that goes in and out with me. I have a little shadow that goes in and out with me. मेरे पास एक ऐसा शैडो जो मेरे अंदर और बाहर आता जाता है. And what can be the use of him is more than I can see. And what can be the use of him is more than I can see. उनका यूज, उसका यूज है वो जो मैं देख रहा हूँ ना उससे भी ज़्यादा हो सकता है. He is very like me from the heels up to the head. वो मेरे जैसा ही है. यस, लाइक ओके, वेरी मतलब मेरे जैसा ही. कहाँ से? हील से लेके हेड तक. ओके, एडी से लेके सर तक वो मेरे जैसा ही है. एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड. जब भी मैं अपने बेड पे जंप करने जा रहा हूँ मेरे पहले वो जंप कर देता है. एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड. मैं देखता हूँ कि जब मैं अपने बेड पे जंप करने जा रहा हूँ उससे पहले वो जंप कर देता है. ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा, द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस शैडो. ओके, जो शैडो है वो पोएट के जैसा दिखता है. वो कैसे पोएट कहते हैं कि जो मैं देख रहा हूँ उससे ज़्यादा भी उस शैडो का यूज़ है. अब पोएट जो रात में या कहीं पे भी जब डे में अब बेड पे सोने जाते हैं तो उससे पहले जो शैडो है वो बेड के ऊपर जंप कर देता है. नेक्स्ट स्टैंजा इज द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो, नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज ऑलवेज वेरी स्लो. तो फनीएस्ट थिंग है जो हमारी शैडो की वो है उसको जो ग्रो करना अच्छा लगता है वो है, बट नॉट एट ऑल लाइक द प्रॉपर चिल्ड्रन. जो प्रॉपर चिल्ड्रन होते हैं उनके जैसे नहीं, जिनकी ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो होती है, धीरे धीरे. ओके,
उनकी ग्रोथ होती है. वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर चिल्ड्रंस, बट नॉट जो प्रॉपर चिल्ड्रन है उनकी तरह जो शैडो है वो ग्रो नहीं होता है. ओके, फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक ए इंडिया रबर बॉल. शूट्स अप टॉलर, कभी कभी वो बहुत ही लंबा हो जाता है, जैसे कि इंडिया रबर बॉल जो होता है, जो रबर का बॉल होता है वैसा. एंड ही समटाइम्स गेट्स सो लिटल दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल. और कभी कभी वो इतना छोटा जाता है कि हम उसे देख भी नहीं सकते. ओके, एंड ही समटाइम्स गेट्स सो लिटल दैट देयर इज नन ऑफ हिम एट ऑल. He hasn't, yes, second stanza is all about that. Now more description about the shadow, that उसे ग्रो करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रॉपर चिल्ड्रन की तरह वो ग्रो नहीं होता, जैसे कि वो स्लो जो ग्रोथ होती है वैसे नहीं. कभी कभी वो बहुत ही ज़्यादा टॉल हो जाता है, कभी कभी बहुत ही लिटिल हो जाता है, मतलब कि स्मॉल हो जाता है जिसे हम देख भी ना सकें. द नेक्स्ट स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा इज he hasn't got a notion of how children ought to play. ओके, ही हैजंट गॉट अ नोशन, उसे कोई आइडिया ही नहीं है कि हाउ चिल्ड्रन आउट टू प्ले, चिल्ड्रन को कैसे खेलना चाहिए. ओके, व्हाट इज द राइट वे टू प्ले. सो ही हैजंट गॉट अ नोशन ऑफ हाउ चिल्ड्रन आउट टू प्ले एंड कैन ओनली मेक अ फुल ऑफ मी इन एवरी शॉर्ट ऑफ वे. और मुझे हर बार वो फुल बनाता है. फुल का मतलब कि यहाँ पे उल्लू बनाता है. ओके, एंड ही कैन ओनली मेक अ फुल ऑफ मी इन एवरी शॉर्ट ऑफ वे. मुझे हर बार वो उल्लू बनाता है. ओके, कि उसे पता ही नहीं है कि कैसे खेलना है, लेकिन जो मैं जो खेलता हूँ ना वैसा ही वो खेलता है. ओके, हियर द पोएट इज टॉकिंग अबाउट, बिकॉज योर शैडो विल डू द सेम थिंग वॉट एवर यू विल डू. आपका शैडो वही करेगा जो आप करेंगे. ओके, सो इन दिस स्टैंजा पोएम इज टॉकिंग अबाउट द सेम. मतलब कि उसको कोई आइडिया नहीं कि चिल्ड्रन है कैसे खेलते हैं, लेकिन वो हर जगह पे मुझे उल्लू बनाता है, क्योंकि जो आप जैसा खेलते हैं वैसे आपका शैडो करेगा. ओके, नेक्स्ट लाइन, ही स्टेज सो क्लोज बिसाइड मी. He is a coward, you can see. He's a coward, you can see. I would think same to stick to nursery as that shadow stick to me. वो मेरे बहुत ही क्लोज रहता है, जो हर बार मेरे क्लोज रहता है, beside me. He's a coward, you can see. वो बहुत ही डरपोक है, आप देख सकते हैं, क्योंकि वो मुझे चिपक चिपक के चलता है. ओके, I would think same to stick to nurse. जैसे मैं नर्स को, केयर टेकर को जैसे चिपका रहता है, जो वहाँ पे फील करता हूँ. ओके, एज दैट शैडो स्टिक्स टू मी. जैसे शैडो मुझे स्टिक करके, मतलब स्टिक का मतलब चिपका रहता है. ओके, वैसे मुझे वहाँ पे क्या आती है, शर्म आती है. शेम का मतलब कि शर्म आती है. ओके, दैट इज द ओके मेन पॉइंट इन दिस थर्ड स्टैंजा. देन इन द फोर्थ स्टैंजा एंड द लास्ट स्टैंजा, वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन वॉज अप. एक मॉर्निंग में जब सन राइज नहीं हुआ था, ओके, वेरी अर्ली, आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप. आई रोज, मैं उठा. ओके, राइज का रोज होता है. आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप. मैंने देखा कि जो बटर कप है उसके ऊपर शाइनिंग ड्यू है. ओके, अर्ली मॉर्निंग में. बट माई लेजी लिटल शैडो लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड. बट माई लेजी लिटल शैडो लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड. एरेंट का मतलब हम कैसे घमंडी नहीं कह सकते, लेकिन वर्स्ट ऑफ इट्स काइंड. ओके, वर्स्ट ऑफ इट काइंड, लेकिन लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड, ऐसा स्लीप हेड उसके कैटेगरी का हम कह के सबसे खराब. बट माई लेजी लिटल शैडो, लेजी है और जो छोटा है वो शैडो, हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट अस्लीप इन बेड. ओके, जो लेकिन अभी जो मैं एक मॉर्निंग में जब मैं जल्दी उठा था, ओके, और मैंने बाहर जाके देखा कि जो बटर कप है उसके ऊपर जो ड्यू है, शाइनिंग ड्यू है, वो मैंने देखा. तो मैं वहाँ पे उसे टच करने गया, उसे रिमूव करने गया, तो जो मेरा जो कहेंगे कि लिटल जो शैडो है, लेजी लिटल शैडो, वो बेड पे ही सोता रहा. ओके, एरेंट स्लीपी हेड के साथ. ओके, उसके जो वर्स्ट स्लीपी हेड है उसके साथ. ओके, क्योंकि वो मेरे पास आया नहीं तब वो बेड पे ही सोता रहा. सो इन द लास्ट स्टैंजा, poet is also talking about the science behind it also. The truth behind is that कि शैडो जो है वो साइंटिफिकली हम कह सकते हैं कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हम किसी लाइट के पाथवे में बीच में हम जब किसी भी चीज़ को रखते हैं, ऑपेक ऑब्जेक्ट को, मतलब कि जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है उस ऑब्जेक्ट को, तो उस ऑब्जेक्ट का जो हम कह सकते हैं कि पार्ट है उतना वहाँ पे शैडो बनता है. उसका शैडो मतलब कि उसका जो डार्क साइड है वो आता है, क्योंकि ऑलवेज शैडो है वो ब्लैक कलर का, मतलब डार्क कलर का ही होता है. Now you can see the shadow of the poet R.L. Stevenson, okay, at his childhood age, sitting over here on the bench, and his shadow is also there.
So according to poet that whatever and wherever he goes and he goes, okay, shadows follows everywhere and does the same thing like the poet. फिर लास्ट में पोइट कहते कि जब एक मॉर्निंग में जब वो बहुत ही जल्दी उठ गए थे, जब सनराइज भी नहीं हुआ था, तब वो बाहर गए थे लेकिन उनके साथ शैडो नहीं आया था, वो बेड पे ही सोता रहा था. तो दैट इज द मीनिंग इन द लास्ट सेंटेंस इज दैट ओके, शैडो जो है वो हम कहेंगे साइंटिफिकली जो उसका ट्रूथ है बिहाइंड के वाई द शैडो इज ऑलवेज देयर. तो जो लाइट होती है, लाइट की जो हम कहेंगे कि जो लाइट ट्रैवल करती है और उसके बीच में वो कोई ऑब्जेक्ट ऐसा लगा देते हैं जिससे उसका हम कह सकते हैं कि डार्क पैच का मतलब कि काला धब्बा जैसा दिखाई देता है, उसे हम शैडो कहते हैं. ओके, जो डार्क ऑब्जेक्ट होता है उसे हम शैडो कहते हैं. तो सुबह कोई लाइट थी ही नहीं, इसलिए वेरी अर्ली मॉर्निंग में तो जो शैडो है उन्हें दिखाई नहीं दिया. किसको? हमारे पोइट को, आर.एल. स्टीवनसन को. So yes students, this is very funny and we can say interesting poem about my shadow. We also have our shadow. Okay, हमारा खुद का भी shadow होता है. तो yes, this is kind of experience that at childhood age that R.L. Stevenson faced. उन्हें ऐसा लगा था कि हाँ, दिमाग में आया होगा कि ये क्या है. जब हमें इतने पर ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, ओके, छोटे होते तब हमें पता चलता है कि ये क्या है, उसे शैडो कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये क्यों बनता है, वो हमारे पीछे क्यों रहता है, हमारे नीचे, ओके, आजू बाजू क्यों पड़ता है डे टाइम में और नाइट टाइम में. मोस्टली जब लाइट की जो हम कह सकते हैं कि ट्रैवल होती है, लाइट जब ट्रैवल करती है तब हम उसको क्यों देखते हैं, अंधेरे में तो वो दिखता ही नहीं देता है. सो दिस इज द थिंग दैट आर.एल. स्टीवनसन ओके इज टॉकिंग अबाउट इन दिस पोएम दैट माई शैडो. I hope students that you have okay understood all these stanzas. They are the 4 stanzas. चारों स्टांजा में अलग अलग जो है शैडो की डिस्क्रिप्शन दी गई. इंट्रोडक्शन के साथ डिस्क्रिप्शन दिया है कि उसे कभी कभी वो बहुत ही बड़ा हो जाता है, ओके, टॉलर हो जाता है, कभी कभी बहुत ही छोटा हो जाता है. ओके, इंट्रोडक्शन में ऐसा है कि वह हिल से हेड तक वो मेरे जैसा ही दिखता है और जब मैं बेड पे जाऊँ तो उससे पहले वो जंप करके बेड में सो जाता है. थर्ड स्टांजा में ऐसा कहा कि उसे कोई आइडिया नहीं कि कैसे खेला जाता है, बच्चों को कैसे खेलना चाहिए, लेकिन वो हर बार मुझे उल्लू बनाता है क्योंकि जो मैं जैसा जैसा मैं खेलता हूँ वैसा ही वो खेलता है और वो हर बार मेरे से चिपके रहता है, मतलब स्टिक टू मी, और वो बहुत ही क्लोज रहता है मेरे से. जैसे कि मैं अपनी नर्स या केयर टेकर को जैसे चिपक के रहता हूँ वैसे वो मुझे चिपक के रहता है. तो आई एम वेरी सेम फॉल ऑफ दैट वन. वो कावड़ है, मतलब कि वो डरपोक है, इसलिए वो मुझे चिपक के रहता है. ओके, देन द लास्ट स्टांजा ही सेज दैट यस, जब वो अर्ली मॉर्निंग पे जब पोएट उठे थे, ओके, और वो बाहर गए थे घर के और उन्होंने देखा था कि बटर कप जो वाइल्ड ओके येलो फ्लावर है उसके ऊपर शाइनिंग ड्यू लगा हुआ था, जमा हुआ था. तो वो उसे लेने के लिए या फिर हम कहेंगे कि वहाँ पे बाहर गए, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके साथ शैडो नहीं आया. ओके, शैडो बेड पे ही सोता रहा. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आई टोल्ड यू दैट. ओके, सो इन दिस 4 stanzas the poet is talking about the whole about his shadow, whatever he feels, whatever he experiences about his shadow. Okay, he has written that in the poem. Now students, after the poem, now we have to start the explanation of textual exercises. So after the completion of the poem, let's start the exercise in which we have 4 to 5 questions only. जो क्वेश्चंस है वो हमें अच्छे से समझने भी हैं, ओके, और हमें याद भी रखने हैं. ओके, वी हैव टू लर्न दिस क्वेश्चंस. ओके, हियर वी कैन से द फर्स्ट इज द शॉर्ट आंसर और बाकी की तीनों है वो लॉन्ग आंसर हैं. ओके, फर्स्ट इज द शॉर्ट एंड अदर 3 आर द लॉन्ग आंसर्स. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, व्हाट डज द शैडो डू व्हेन द पोएट जंप्स इनटू बेड? जब पोएट बेड के ऊपर जंप करता है तो शैडो क्या करता है? ओके, सो आंसर इज वेरी इजी. The shadow jumps into the bed before the poet. The shadow jumps into the bed before the poet. Poet बेड के ऊपर जंप लगाए उससे पहले कौन लगा देता है? शैडो लगा देता है जंप. ओके, सो दिस इज द आंसर. The shadow jumps into bed before the poet. Next question is the shadow like a proper child? क्या शैडो एक प्रॉपर चाइल्ड के जैसा है? Why? ओके, यस है तो why and no है तो भी why. You know very well, shadow is not like a proper child. Why? Let's see the answer. Yes, the shadow is not at all like a proper child. Proper child के जैसे shadow है ही नहीं. Because he does not grow. वो कभी grow होता नहीं. Grow मतलब slow, जो proper child जो slowly grow होता है ऐसा grow नहीं होता है. He sometimes shoots up very tall. कभी कभी बहुत ही लंबा हो जाता है. And sometimes gets so little that he cannot be seen at all. और कभी कभी इतना छोटा हो जाता है उसे हम कभी देख भी नहीं सकते. ओके,
So the shadow is not at all like a proper child because he does not grow. He sometimes shoots up very tall and sometimes gets so little that he cannot be seen at all. कभी कभी वो बहुत ही लंबा हो जाता है और कभी कभी इतना छोटा हो जाता है कि हम उसे कभी देख भी नहीं पाते. ओके, सो जो उसकी ग्रोथ है ना वो प्रॉपर चाइल्ड की जैसी नहीं है, बिकॉज ऑल द प्रॉपर चाइल्ड, ओके, ग्रोथ इज वेरी स्लो. ओके, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज वेरी स्लो ऑफ द प्रॉपर चाइल्ड. सो अवर दिस poet's shadow is not a proper child at all. Then question number 3, can the shadow really make the poet look like a fool? Why does the poet say this? Okay, I will repeat the question. Can the shadow really make the poet look like a fool? क्या shadow है वो poet को सच में उल्लू बनाता दिखते हैं? Okay, why does the poet say this? तो poet ने ऐसा क्यों कहा? Okay, कि वो उसे सच में उल्लू बनाता है. Let's see the answer. The shadow cannot really make the poet look like a fool because it does only what the poet himself does. वो उन्हें उल्लू दिखा बड़ा होता है ऐसा नहीं दिखाई दे रहा. क्यों? क्योंकि जो पोएट जो शैडो है वही करता है जो पोएट करते हैं. ओके, बिकॉज इट डज ओनली व्हाट द पोएट हिमसेल्फ डज. The poet may be saying this because he does not want to, yes, accept that, he himself may be doing silly things at time. तो शैडो को वो ऐसा कहते हैं कि वो फूल नहीं है क्योंकि शैडो वही करता है जो पोएट खुद करते हैं. तो पोएट अपने आप को फूल नहीं बना दिखाना चाहते या बताना चाहते, इसलिए वो ऐसा कहते हैं कि जो शैडो है वो फूल की तरह, मतलब कि हम कह सकते हैं उल्लू की तरह कोई काम नहीं करता है. तो वो इसलिए कहते हैं कि वो खुद कोई ऐसे काम नहीं करते, सिली चीज़ नहीं करते, फुल जैसी फुलिश चीज़ें नहीं करते हैं जो उनका शैडो भी उसे इमिटेट करता है, जो कॉपी करता है, फॉलो करता है. तो उन्होंने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि वो खुद अपने आप को फुल या हम कह सकते हैं कि सिली फेलो नहीं दिखाना चाहते, बताना भी चाहते. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई इज द शैडो अ कावर्ड? इज द पोएट अ कावर्ड टू? हाउ डू यू नो? क्यों शैडो कावर्ड है, मतलब कि डरपोक है? क्या पोएट भी डरपोक है? ओके, हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता चला? सो लेट्स सी द आंसर. द आंसर इज, द पोएट कॉल्स शैडो अ कावर्ड बिकॉज इट स्टिक्स टू क्लोज टू हिम. वो उनसे चिपका रहता है. कौन? शैडो पोएट के साथ, इसलिए उन्होंने उसे कावर्ड कहा. द पोएट हिमसेल्फ इज नॉट अ कावर्ड बिकॉज ही थिंक्स इट इज अ शेमफुल हाउ द शैडो हाइड्स बिहाइंड हिम. क्योंकि पोएट अपने आप को कावर्ड नहीं कहते क्योंकि वो बहुत ही शर्मसार है, बहुत ही हम कह सकते हैं शेमफुल है कि शैडो कैसे उनके पीछे छुप जाता है. ओके, उनके साथ ही जो कहते हैं स्टिक रहता है, मतलब कि चिपका रहता है. ओके, बहुत ही क्लोज. दैट्स वाई दैट पोएट कॉल्स दैट शैडो इज अ कावर्ड एंड ही इज नॉट कावर्ड एट ऑल. कावर्ड का मतलब होता है डरपोक. सो स्टूडेंट्स, यस, दिस इज ऑल अबाउट आवर explanation of the question answers. These are the 4 question answers in which I told the first one is short answer and all rest of the 3 are long answers. And this is all about our poem with the 4 stanza. Okay, the main thing that I have not discussed yet now, कि वो poet complete होने के बाद ही आपको discuss करूँगा, वो ये थी कि yes, all the poem have their own rhyming words. एग्जाम में पूछा नहीं जाता है कभी कभी, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि ये पूछने जैसा क्वेश्चन भी है. ओके, जैसे कि जो पूरे स्टांजा में 4 स्टांजाज होती है, उसमें जो लाइन्स होती है उसमें एंड ऑफ द लाइन में जो वर्ड होते हैं वो दूसरी जो लाइन होती है उसके साथ राइम करते हैं. राइम का मतलब कि उसके जैसे ही हम कह सकते हैं प्रोनाउंसिएशन होता है, उसे राइमिंग वर्ड्स कहते हैं. प्लीज रिमेंबर. अब ये जो होता है वो उसकी एक पैटर्न में होती है. ए बी बी सी सी, मतलब जो ऊपर नीचे के 2 होते हैं वो ए बी सी होते हैं. ओके, ए सी होते हैं. तो ऐसे अलग अलग उनकी पैटर्न होती है राइमिंग वर्ड्स की. सो हियर जो हम पैटर्न करेंगे ना कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ. तो फर्स्ट सेकंड हम कहेंगे कि ए बी जो है ए बी है, मतलब फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, वो उनकी हम कह सकते हैं राइमिंग वर्ड में है. मी का सी, हेड का बेड, ग्रो स्लो, बॉल ऑल, प्ले वे सी मी, अप कप हेड बेड. ओके, तो ये राइमिंग वर्ड है ए बी पैटर्न में. ओके, ए बी पैटर्न मतलब कि फर्स्ट लाइन एंड द सेकंड लाइन. वर्ड हैज अ राइमिंग विथ फर्स्ट लाइन टू इट्स सेकंड लाइन. ओके, सो ए बी इसका हम कहेंगे कि राइमिंग वर्ड है और उसकी ये पैटर्न है, राइमिंग पैटर्न ऑल्सो.
सो ये जो एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा है वो हमें समझना पड़ेगा कि राइमिंग वर्ड्स क्या है, उसकी राइम स्कीम क्या है। इसे राइम स्कीम कहते हैं, जिसे हम पैटर्न कहते हैं ना, उसे राइम स्कीम कहते हैं। तो ये एक्स्ट्रा है आपके नॉलेज के लिए। ओके, डोंट वरी, आई विल नॉट आस्क एनी राइम वर्ड राइम स्कीम इन द एग्जाम और राइमिंग वर्ड्स। ओके, क्योंकि जो राइमिंग वर्ड है वो हमारी हम कहेंगे कि अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आता है, और आगे आपके जाके आपको ये आएगा भी कि राइमिंग स्कीम क्या है और राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं। So I hope students you understand everything about this poem, and yes, this is all about our poem number 4 from the literature part. And now we have completed every chapter, okay, according to that. Okay, जो हमने सिलेबस कंप्लीट किया था ग्रामर का, उसके बाद हमने लिटरेचर का चैप्टर नंबर 9 और पोएम नंबर 4 स्टार्ट भी किया था, और नाउ इट्स कंप्लीट ऑल्सो। सो नाउ नॉट सिंगल, ओके, वन मोर चैप्टर, ओके, एडेड इन दिस सिलेबस। अब लिटरेचर का जो हमने एक्सक्लूड किया है उसका कोई चैप्टर अब ऐड होगा नहीं। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर लिटरेचर पार्ट ऑल्सो फॉर दिस ईयर। थैंक यू, गुड बाय।